Students, in this video we will start the new and the second chapter. This is biological classification. Okay, so in the previous chapter we have studied about all the things which are related with the living organism. So the first chapter was living world, and living world में हमने ट्रिक्सोनॉमी रिलेटेड या लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी. नाउ वी हैव टू नो कि इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जब क्लासिफाइड किया तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स किस तरीके से यहाँ पे इवॉल्व किए गए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया एंड द डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन दैट क्लासिफिकेशन system. So first line I have written this is not related with this one, but even I tried to say कि भाई biological classification पढ़ रहे हैं तो किस आधार पे सारी चीज़ें चली. So I have written I am neither clever nor especially gifted. I am only very very curious. So who said this? Albert Einstein. Okay, so this is an quote and this was given by the Albert Einstein. So he says I'm not a clever, not especially gifted, so I'm very curious. So इसी बेस पर curious होना ही किसी भी चीज़ को जो है वो फॉर्म करता है. तो यही सेम था फंडामेंटल कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना जो व्यू रखा, जो उन्होंने अपने बताया एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन कैसे किया, तो उसका सिर्फ एक मेन जो मकसद था या बेस हम कह सकते हैं दैट वाज क्यूरियस टू नो. दे वांट टू नो एग्जैक्टली कि क्या हो सकता है जो हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म है, तो उनको क्लासिफाइड करने के अलग अलग तरीके देखिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम. और बिल्कुल बेसिक वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे. सिस्टम इज़ अनदर थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दैट साइंटिस्ट जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए. ओके, लेट अस स्टार्ट. So the first was Aristotle. I've already told you about the Aristotle. He was father of biology as well as he is known to be as father of zoology. So he was the earliest to attempt, that means he was the first one, we can say that he was the first one to attempt a more scientific basis for classification. That means before Aristotle there was no one who has decided to classify the organism. But when he decided, that means he was curious to know that either the plants are same or the animals are the same, that means having same physiological morphological characters. But what he found is no, there are distinguish between the morphological and the anatomical characters. So morphological are the physical characters. So what he did, if we talk about plants, so he take few morphological characters like trees are tall, shrubs are small and herbs. So on the basis of their, we can say, the height, so he take one step, that is height characteristic. बट डीपली वी कैन नॉट से कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया और उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया. सो ही टेक जस्ट वन और टू कैरेक्टर्स दैट आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन प्लांट्स. एंड इन एनिमल्स what he did, he said some animals having red blood and some do not having red blood. So on that basis, that means that criteria is based on his classification system. So he gave the two classification system, we can say that, and that is plant and animal. So he distinguished two, plants and the animals, and when he divided both the plants and animals, then he said about like कि किस तरीके से इसमें और चीज़ें हो सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन आती गई. और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है लेनियस, उन्होंने भी एरिस्टोटल की ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को माना. उन्होंने बस थोड़ा बहुत उस पर मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी प्लांट्स में कुछ और चीज़ों को ऐड कर दिया और एनिमल्स को भी कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया. सो और हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल का जो सिस्टम था इसको काफ़ी सालों तक जो है लोग मानते रहे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को क्यूरियसिटी नहीं थी उतना ज़्यादा. सो जितना टेक्नोलॉजी आज है या जितना लोग क्यूरियस आज रहते हैं चीज़ों को लेकर, उतना नहीं था. तो ये भी एक रीज़न था कि बहुत सालों तक सेम जो चीज़ किसी एक ने दे दी उसको माना जा रहा है. चलो अब हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए
जो मेनली बहुत ही फेमस हैं, दैट इज लीनियस, कैरोलस लीनियस। सो 17th सेंचुरी के आते आते जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने एरिस्टोटल के बिहाफ पे ही टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. So he also decided to give Plantae and Animalia, but he added more plants and animals in the group. Like plants में कुछ और animals को add किया और plants में कुछ और plants को add किया and animals में कुछ और animals को add कर दिया गया. That means एरिस्टोटल ने कहा रेड ब्लड है या नहीं है, so उनसे थोड़ा सा हट के, लेकिन उन्होंने कुछ नया किंगडम ऐड नहीं किया. सो ये एक उनका डिफॉर्म कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ नई चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ नया नहीं बताया. सो डिफॉर्म्स फॉर दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक. तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स यू हैव ऑलरेडी नोन कि क्या होते हैं, बट उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की. ना ही यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड उन्होंने बात नहीं की. Rest of he do not added photosynthetic, like I have given the example green algae, and non photosynthetic like fungi. ठीक, तो उन्होंने algae या fungi के बारे में कुछ भी ऐड नहीं किया. मीन्स he did not distinguish कि कुछ अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स में, कुछ नहीं कर सकते हैं. सो he placed the fungi in the Plantae किंगडम. बट अब तुम लोगों को पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो फंजाई को अलग किंगडम दिया गया है. एंड मोर ओवर इफ यू टॉक अबाउट लिनियस वाज वेरी फेमस दैट ही हैव गिवन द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम एंड इवन टेक्सोनॉमी. जो टेक्सोनॉमी हायरार्की वी स्टडीड ना, कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, ये ऑल these categories, that is taxonomy hierarchy, that was also given by the Carolus Linnaeus. So he also distinguish over the classification system. उन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प भी करी, लेकिन जो न्यू साइंटिस्ट हैं उन्होंने आके 18th सेंचुरी में इस पर काम करना स्टार्ट किया. बिफोर दैट इसी को ही जो है बेस माना गया क्लासिफिकेशन का. यानी 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो है डिस्कवरीज हुई. उसका रीज़न ही ये है कि एक तो माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर्ड पहले नहीं हुआ था. 1674 में एंटन वॉन लेवनहुक ने किया, तो उसके बाद काफ़ी हद तक डिस्कवरीज होना स्टार्ट हुई. तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था. ये भी एक रीज़न रहा कि पहले उतनी डिस्कवरीज हो ही नहीं पाती थी. और आफ्टर दैट वैन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड, सो दैट जो क्लासिफिकेशन देने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्पीड अप होने लगा. सो ऑन दैट बेसिस नेक्स्ट वी विल टेक द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. हु क्रिएट द नेक्स्ट किंगडम? लेट अस टेक. So third scientist was Ernst Haeckel. So 1880s, that means in 18th century, Linnaeus के बाद में उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया. What he decided, that means many organisms are not want to placed in under plant and animal kingdom. So what he did, he said something is there, like कि कुछ तो गड़बड़ है. और वो गड़बड़ क्या है कि भाई कुछ तो प्लांट किंगडम में रहना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं. यानी कि कुछ की सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट किंगडम से, कुछ की नहीं है. कुछ के एनिमल से हैं और पूरी तरीके से नहीं भी हैं. तो भाई जो उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई एक ऐसा डस्टबिन क्रिएट कर दिया जाए जिसमें जो दोनों से संतुष्ट नहीं है उसको किस में डाल दिया जाए, प्रोटिस्टा. उन्होंने मतलब तीसरा जो वे चूज करते वो वाला काम कर दिया कि भाई इसमें फिट नहीं है, ठीक है चलो तुम इसमें चले जाओ, इसमें तुम नहीं हो, ठीक है तुम इसमें चले जाओ. वी कैन से दैट दिस वाज डस्टबिन, लाइक डस्टबिन ही हुआ है ना, जिसमें सबको डाल दिया गया. और उसके अलावा प्रोटिस्टा जो है उसमें यानी दोनों चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक वाले ऐड हो गए, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी. तो इस तरीके से ये तीसरा किंगडम जो है वो एड ऑन हो गया, was given by the Ernst Haeckel. Now we have to know कि थर्ड किंगडम के बाद फोर्थ किंगडम कौन सा आया और किसने इसको दिया. So the four kingdom classification was given in 19th century, so we can say 1938.
Scientist was Herbert F. Copeland. So Copeland given the four kingdom classification. What was the reason behind कि भाई 19th century में ऐसा होना start हुआ? So I have already written in this era microorganisms were discovered, so it become easy to identify the organelles. So we can say that microscope जो है वो discovered हो चुका था, तो micro organelles जो है वो भी easily visualize हो सकते थे. So उन्होंने finally ये decide किया कि कुछ ऐसे जो है अलग टाइप के क्रिएचर्स हैं जिनको कि ना हम प्लांट में इंक्लूड कर सकते हैं ना ही एनिमल में इंक्लूड कर सकते हैं. दे हैव अ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ही मेड डिफरेंट किंगडम फॉर बैक्टीरिया. सो व्हाट ही डिड कि उन्होंने कहा भाई एक किंगडम बैक्टीरिया का तो बिल्कुल अलग ही बना लिया जाए, और किंगडम बैक्टीरिया में भी उन्होंने थोड़ा अलग अलग किया कि कुछ एक नॉर्मल बैक्टीरिया थे, अब जिन्हें हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ अपना फूड खुद बना लेते हैं. उन्होंने बोला 95% जो है वो तो अपना बना नहीं पाते फूड, तो उनको बैक्टीरिया बोल दिया गया नॉर्मली, और जो बना लेते हैं उनको कहा साइनो बैक्टीरिया. बट व्हाट ही डिड, ही प्लेस्ड इन अ सिंगल किंगडम दैट इज मोनेरा. और यानी ये हम कह सकते हैं कि मोनेरा को अपनी एक अलग जगह मिल गई. नाउ जो फंजाई है, अब तक फंजाई को किस में रखा जा रहा था? प्लांट किंगडम. एंड वी नो फंजाई हेट्रोट्रॉफ है और रेस्ट ऑफ प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं. सो आगे चल के नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा कि भाई फंजाई को हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते. तो फोर्थ किंगडम जो डिस्कवर्ड हुआ वो कौन सा था? मोनेरा. एंड द फिफ्थ किंगडम तो यहाँ से ऑलरेडी बता सकते हो, दैट वाज फंजाई. अब हम बात करते हैं फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब जो रहा है दैट वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. किस बेसिस पे किया उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड भी किया, हालांकि कुछ चीज़ों से अनसेटिस्फाइड भी रहे, तो उसके लिए आगे लेटर ऑन और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया, डिफरेंट सिस्टम्स भी दिए. सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम.